A warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. So today this channel has completed its first 1000 subscribers. Thank you so much for your love and support. Now let me talk about this video lecture. This is very important because many students are asking me about the new paper pattern of 12th class English subject. So this video lecture is about model activity sheet or a sample question paper that I made for you all. So let's begin this video. The question paper will be divided into 4 parts. First part will be of prose, then second will be for poetry, third will be on writing skill, and fourth will be on the genre novel. Now let's see question number 1A. So in question number 1A you will have one passage from section 1 of your 12th class textbook. जैसे कि आपको पता होगा there are 8 lessons in the textbook but 2 lessons are omitted from the syllabus. 2 लेसन जो है वो डिडक्ट कर दिए गए हैं, ओमिट कर दिए गए हैं. तो जो 6 लेसन्स है उसमें से कोई एक लेसन का पैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा जाएगा और उसमें क्वेश्चन होगा A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पे, A2 कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल पे, A3 इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पे, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, A5 जो है वो लैंग्वेज स्टडी पे रहेगा जिसमें कोई भी ग्रामर के टॉपिक पूछे जाएंगे या फिर वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा. A6 जो है वो वोकेबलरी पे रहेगा जिसमें अगेन लाइक गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ऐसे कोई या एंटोनिम या सिनोनिम्स, ये सारा वर्ड से रिलेटेड वोकेबलरी में रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो रहेगा डू एज डायरेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड आएंगे जो कि नॉन टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का B2 जो रहेगा इट्स अ कंपलसरी, इट्स अ मस्ट क्वेश्चन दैट विल बी देयर इन योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. स्पॉट द एरर और एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस. ये वाला आपको क्वेश्चन आएगा. सेंटेंस कौन सा आएगा वो अभी हम नहीं बता सकते हैं लेकिन दिस इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन. आपको फाइंड आउट करना है कि वो गिवन सेंटेंस में कौन सा एरर है उसको करेक्ट करना है. तो आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1B has 2 questions B1 and B2 and B1 and B2 will be based on non-textual grammar. In activity B1 any grammar items for transformation from the syllabus will be asked as you can see on the screen, and in B2 activity you will be given an incorrect sentence. You will have to spot the errors, correct them and rewrite the corrected sentence, and B2 is a compulsory question. Let's talk about question number 2A. So in question number 2A you will have one unseen passage of 275 to 300 words on activity types and marks as in you have seen in question number 1A. तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जो अनसीन पैसेज रहेगा उसके सेम वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे टाइप में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, लाइक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप एंड ऑल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी आता है समरी राइटिंग एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू समराइज द पैसेज, द अनसीन पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2A with the help of the given points or clues. And the question will be like, prepare a summary of the extract given in question number 2A, give it a suitable title, you may use the following points. आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट्स भी दिए जाएंगे. सो समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि आपको अनसीन पैसेज की समरी के लिए पूछा जाएगा फॉर 3 मार्क्स. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2C आता है जो कि माइंड मैपिंग है. So you will have to develop a mind mapping frame or design using your own ideas or thoughts or concepts to illustrate or develop on the given topic. It may or may not be a completion exercise.
तो आपको कुछ ऐसे आएगा कि कंप्लीट द डायग्राम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, और आपको माइंड मैपिंग जो है वो लिखनी. So that's all about section 1. Now moving on to next section, that is based on poetry. So as you have 8 poems in the syllabus, but 2 poems are omitted from the lesson. So now you have 6 poems. You have to prepare 6 poems for this board examination. I am talking about the session 2020-2021. So you will have one scene poem in question number 2A. So जो 6 पोएम्स है उसमें से कोई एक पोएम आपको इसमें आएंगी, और आपको क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फरेंस, पर्सनल रिस्पांस, पोएटिक डिवाइस और क्रिएटिविटी, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपको रहेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपको पूछा जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है पोएम का, उसके बी में यू विल हैव अनदर पोएम. वो 6 में से कोई एक और पोएम दूसरी आपको आएंगी, और उसमें आपको बोला जाएगा कि राइट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. और ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे ही पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में भी दिए जाएंगे. पॉइंट्स हैं अबाउट द पोएम और पोएट एंड द टाइटल, द थीम, पोएटिक स्टाइल, द लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, स्पेशल फीचर्स, मैसेज, वैल्यूज़, मॉरल्स इन द पोएम, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम. ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड सेक्शन दैट वाज बेस्ड ऑन पोएम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3, राइटिंग स्किल्स. So you will have question number 4, and the question will be like complete the activities as per the instructions given below. There will be 4 parts to this question, like A, B, C and D. Question number 4A, question number 4B, question number 4C and question number 4D. And each part has 3 choices in sub questions, and you have to attempt any one question from each part. Read the choices carefully before you choose. तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो रहेगा उसमें 3 आपको चॉइस आएंगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है. बी में भी 3 आएंगी चॉइस, आपको एक सिलेक्ट करना है. सी में भी 3 चॉइस आएंगी और डी में भी 3 चॉइस आएंगी. तो 3 चॉइसेस आपको आएंगी सब क्वेश्चंस में, आपको एक चूज़ करके उसका आंसर लिखना है. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है उसमें नंबर 1 पे आपको ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. And in this activity you have to convert a virtual telephone conversation or audio chat into a brief written message for a third person. ये आपको करना है. ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो रहेगा उसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज पे आएगा. इसी के ऑप्शन में आपको रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे क्वेश्चन. So a statement of purpose or SOP is a personalized application seeking admission to a university or a particular course. It is a brief essay describing you as the person you are, your goals and plans. तो इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है. क्वेश्चन विल बी लाइक राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी. और इसी के ऑप्शन में आपको जो थर्ड रहेगा वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन. एक ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में रहेगा. देखिए पहला वर्चुअल मैसेज का हुआ, उसके ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आया, और उसी के ऑप्शन में आपको ग्रुप डिस्कशन आ गया. A group discussion is a formal discussion on a topic. The participants analyze the topic and give their views and opinions. In the written form of the discussion, you have to write dialogues for at least 3 to 4 people on the given topic or as given in the instruction. तो ये group discussion पे आपको question रहेगा. Now let's see question number 4B. Attempt any one of the following. इसमें भी आपको 3 choices रहेंगी, एक आपको select करना है. First one is email writing. The email could be a formal or an informal one. Use the correct format and email IDs. The language should be appropriate. For example, the question will be like, write an email in a proper format to your friends about your proposed track. You can take the help of the points given below. So in all the questions from writing skills section, you will be given certain points, and with the help of those points, you नीड टू राइट योर आंसर. अब ईमेल राइटिंग के ऑप्शन में आपको रहेगा रिपोर्ट राइटिंग,
रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिस पे आपको रिपोर्ट बनाना है वो टाइटल आपको दिया जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग के ही ऑप्शन में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा। सपोज इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू इंटरव्यू अ फेमस पर्सनैलिटी, फ्रेम अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम और हर विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपको रहेगा। तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बी में हो गया ईमेल राइटिंग, उसके ऑप्शन में आ गया रिपोर्ट राइटिंग और इसी के ऑप्शन में आ गया इंटरव्यू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4C। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीच। So in this question you are expected to draft a speech in about 100 to 150 words based on the given topic. Points will be given for guide. अब देखते हैं स्पीच राइटिंग के ऑप्शन में क्या क्या रहेगा। एक है कंपेयरिंग और एक है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। तो ये कंपेयरिंग जो है वो स्पीच राइटिंग के ऑप्शन में रहेगा और उसी के ऑप्शन में एक्सपांशन ऑफ आइडिया भी रहेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको स्पीच राइटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग वाला करना है या एक्सपांशन ऑफ आइडिया वाला क्वेश्चन करना है। Now let's see expansion of an idea. So this activity will be on the expansion of an idea. A proverb or saying or maxim etc. will be given in your question. Based on the given points, you have to take the idea contained in it and expand it in 100 to 150 words. Now let's see question number 4D. Attempt any one of the following. First one is review. What is a film review? A film review is a critical appraisal of a film. You have to analyze a film and its components. You also have to provide some basic information about the film as per the given point. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी में पहला तो फिल्म रिव्यू हो गया, दूसरा जो उसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ब्लॉग राइटिंग का और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपील राइटिंग का। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है आपको फिल्म रिव्यू लिखना है, ब्लॉग राइटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर अपील राइटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ब्लॉग राइटिंग वाली एक्टिविटी देखिए तो दिस एक्टिविटी विल बी फॉर राइटिंग अ ब्लॉग. द टॉपिक एंड पॉइंट्स विल बी गिवन. यू हैव टू यूज द पॉइंट्स एंड राइट द ब्लॉग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स यूजिंग द ब्लॉग. और ब्लॉग राइटिंग के ही ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है अपील राइटिंग. अपील राइटिंग में बी अ रिक्वेस्ट और अ प्ली ऑन सम सोशल इशू और आस्किंग फॉर हेल्प और डोनेशन और सपोर्ट फॉर समवन और समथिंग. अ टॉपिक विल बी गिवन अलॉन्ग विद द पॉइंट्स फॉर राइटिंग. एन अपील इज टू बी रिटन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. Now moving on to the last section of our board question paper, that is literary genre novel. So this whole section will be there for 16 marks, 4 marks each. In question number 5A, these activities will be based on history of English novel, lesson number 4.1. 2 questions of 2 marks each will be asked. The type of activities that could be asked in are MCQs, match the columns, chronological order, fill in the blanks, true and false, elements of novel or any other novel activity. The activities will not be repeated in the sub questions. Now let's see question number 5B. This question will be based on the lesson 4.2, To Serve with Love. It will be based on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. 2 questions of 2 marks each will be asked. The activities are as follows. Question number 1 will be describe, explain, compare, contrast, name, discuss. Question number 2 will be like illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. The answer to each question should be in about 50 words. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का ABCD जो रहेगा उसमें देयर विल बी नो पैसेज. कोई पैसेज आपको दिया नहीं जाएगा, आपको खुद से उसके आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 का B जो पूछा जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द लेसन 4.2 टू सर्व विथ लव. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5C. So this question will be based on the lesson 4.3 around the world in 80 days and it will be based on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. 2 questions of 2 marks each will be asked. 4.3 वाला जो लेसन है आपका अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे 2 marks each. हर क्वेश्चन 2 mark का रहेगा. एंड द एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज. इन क्वेश्चन नंबर 1A you will have questions like
describe or explain or compare or contrast or name or discuss. In question number 2, you will have illustrate or interpret or narrate or justify or find out or identify. The answer to each question should be in about 50 words. Now let's see the last question of question number 5D. This question will be based on lesson 4.4, the sign of 4, and it will be based on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4.4 वाला जो लेसन है द साइन ऑफ 4 उसमें से पूछा जाएगा. 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच विल बी आस्क्ड. कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा. द एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 1 में भी वैसे ही रहेगा जैसे इस पर पूछा गया है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस. और क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही रहेगा, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई. एंड आई रिपीट माई सेंटेंस कि क्वेश्चन नंबर 5 में यू विल नॉट हैव एनी पैसेज. सारे आंसर्स आपको खुद से ही प्रिपेयर करके लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 12th class, you can ask me in the chat box. Thank you so much.